Hello viewers, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. So without losing any time, let us start a very important topic, identification of tenses. Tenses are very important to learn English grammar. So first of all, we have to learn the definition of tense. What tense is? Tense is the time described by a verb shown by इट्स ग्रामेटिकल फॉर्म। देखिए ग्रामेटिकल फॉर्म में जो हम टाइम को शो करते हैं ग्रामेटिकल फॉर्म में उसको टेंस कहते हैं। एक सिंपल टाइम नहीं, ग्रामेटिकल फॉर्म में जो वर्ब के थ्रू हम टाइम को प्रेजेंट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम टेंस कहते हैं। देयर आर थ्री टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। तो जो मेन टेंसेस हैं वो थ्री हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बट each tense has four kinds। so हर टेंस के फोर काइंड्स हैं और वो काइंड्स क्या हैं? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ आई टेल यू इन डिटेल। Four parts of present tense: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. In the same way, you have simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Same thing is in future: simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. Okay, now I tell you the importance of the identification of tenses, because first of all you have to identify the tense. If a sentence is written and you are required to identify as to which tense the sentence belongs, because if you are asked to convert a sentence from active voice to passive voice or from direct speech to indirect speech, you are required to know as to which tense the sentence belongs, and therefore identification of tenses becomes very important for the students, no matter whether a student is making preparation for the competition or he is going to appear in the academic examination of class 10th or 12th. Let us see what is the importance of tense, identification of tense. The identification of tense is the basic need of English grammar to do the desired changes in the structure of sentences. Structure of sentences. It is so because the application of so many rules of grammar depends on the tense to which the verb of a sentence belongs. Okay, the tense of a verb is identified by the form of the verb and the helping verb which governs it. Now we must know the helping verbs of all the tenses. So now in Hindi I tell you, so that the other viewers who are not able to understand the things in English may be able to understand it very clearly. देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस क्या है? ये एक बेसिक नीड है इंग्लिश ग्रामर की। किसके लिए? टू डू द डिजायर्ड चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर चेंज करने होते हैं, कभी एक्टिव से पैसिव में करना है, कभी पैसिव से एक्टिव में करना है, कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाना है, कभी डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में आना है, कभी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल या कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। सो ऑल दी चेंजेस रिक्वायर द नॉलेज ऑफ टेंस। ओके, सो इसलिए ये तो बेसिक है। It is so because the application of many rules of grammar depends on the tense to which the verb of a sentence belongs. The tense of a verb is identified. हम इसको identify कैसे करते हैं tense को? देखिए हम दो चीजों से identify करते हैं, एक तो helping verb को देख करके और एक हम verb के form को देख करके। देखिए कुछ sentences ऐसे होंगे जिनमें helping verb नहीं होगी और वो sentences mostly होंगे simple present एंड सिंपल पास्ट टेंस के, क्योंकि उनके कुछ सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। जैसे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में हम जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। नेगेटिव में जो नो वाले नेगेटिव होंगे, नो वन, नोबडी, नन, नथिंग, नो, या नेवर वाले जो नेगेटिव होंगे उनमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। उनमें भी वर्ब वैसे ही चलती है जैसे कि
आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में चलती है। रीजन जानते हैं क्या है? रीजन ये है कि नो, नो वन, नोबडी, नन, नथिंग, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन नहीं होते हैं। देखिए नो हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, लेकिन कब? जब वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। जैसे मैंने कहा हैव यू डन योर वर्क, और आपने कहा नो आई हैवंट। सो जो नो एंड नो के बाद में जो कॉमा आया उसके बाद सेंटेंस है, ये जो नो है ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। लेकिन जब तक आप जब आप नो को इनसाइड द सेंटेंस देखेंगे तो वो कभी भी एडवर्ब ऑफ नेगेशन नहीं हो सकता। ओके, वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता ही नहीं है। इसलिए जब एडवर्ब ऑफ नेगेशन नहीं होगा तो उस सेंटेंस को नेगेटिव पैटर्न का ट्रीटमेंट नहीं मिलता। यानी हम नॉट के साथ में डज या डू का यूज करते हैं या डिड का यूज करते हैं। अगर नॉट नहीं होगा तो नेवर, नेवर क्या है आपका? नेवर आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन नहीं है, इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस का ट्रीटमेंट सेंटेंस को नहीं मिलता है। ओके, सो हमें ये जानना चाहिए कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। तो हम या तो वर्ब के फॉर्म को देख करके टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर हम हेल्पिंग वर्ब को देख करके करते हैं। तो पहले मैंने ये देखा कि हेल्पिंग वर्ब को हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्या करते हैं। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स है डज एंड डू। डज आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। और जब भी ये हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। जब ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आती हैं तो क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एस फॉर्म, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को हम और ऐड करते हैं। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो फिर बिना हेल्पिंग वर्ब के भी फर्स्ट फॉर्म ही चलता है। ठीक है, तो जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी उनमें टू फॉर्म्स चलेंगे, एक तो एस फॉर्म, एक फर्स्ट फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब आने पर केवल एक ही फॉर्म चलेगा, फर्स्ट फॉर्म। सो ये देखिए, ये हमने देख लिया। फिर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, आर, एम। एम केवल आई के लिए है, बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए इज और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए आर। ओके, इनके साथ में फॉर्म चलेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। तो ये आईएनजी फॉर्म आएगा इसके साथ में, तब ये कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, और इसी तरीके से तो हैज हैव क्या है? उसकी हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन एंड हैव बीन। हैज बीन फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव बीन फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, और इनके साथ में भी आईएनजी फॉर्म। तो देखिए आईएनजी फॉर्म दो जगह आता है, एक तो कंटिन्यूअस टेंसेस में, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। ये देखिए कंटिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी फॉर्म है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी फॉर्म है। और देखिए जितने परफेक्ट टेंसेस होंगे उन सब में थर्ड फॉर्म। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है थर्ड फॉर्म, ये देखिए आपका पास्ट परफेक्ट है थर्ड फॉर्म, ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें थर्ड फॉर्म। तो एक ये बड़ा इजी है हमको लर्न करना कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उनमें आईएनजी फॉर्म आएगा, जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं उनमें थर्ड फॉर्म आएगा, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उन सब में जो है आईएनजी फॉर्म आएगा। और जितने सिंपल टेंसेस हैं जब तक उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी तब तक केवल एक फॉर्म आएगा, फर्स्ट। देखिए फर्स्ट फॉर्म, देन फर्स्ट फॉर्म, देन फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। फिर जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, जैसे सिंपल प्रेजेंट में नहीं आती, तो टू पैटर्न्स अप्लाई होते हैं, फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म। और सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म अप्लाई होने लगता है अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता तो ठीक है, हमने देख लिए प्रेजेंट के चारों टेंसेस के, हमने देख लिए कि क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, क्या फॉर्म्स आएंगे। अब देखिए पास्ट में देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड। जब डिड आएगी तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिड नहीं आएगी तो सेकंड फॉर्म आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है was एंड were। were फॉर प्लूरल सब्जेक्ट एंड was फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। और कंटिन्यूअस टेंस है तो इसलिए आईएनजी फॉर्म आता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही है, हैड। जैसे सिंगल है इसमें भी, सिंपल पास्ट में भी सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके के सब्जेक्ट्स के लिए डिड का ही यूज होता है। और इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस में भी सिंगल हेल्पिंग वर्ब है हैड, और इसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? हैड बीन, ये भी सिंगल है। हैड बीन के साथ में भी आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, जैसे सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में अभी मैंने बताया
आईएनजी फॉर्म आता है, तो फिर वो आईएनजी फॉर्म यहाँ भी आएगा। और सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, शैल या विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने कहा ना सारे सिंपल टेंसेस अगर उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है तो फिर उनमें एक ही फॉर्म चलेगा, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आता है, शैल बी एंड विल बी फॉर थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स एंड शैल बी फॉर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। ओके। in simple future also shall will be used for first person subject यानी I and we, और will be used for third person and second person subjects यानी you, he, she, it, they। इनके लिए नाउन, ये नाउन भी थर्ड पर्सन होता है, इनके लिए will आता है। shall have and will have for future perfect tense, और इसके साथ में verb का फॉर्म होगा थर्ड। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की टू हेल्पिंग वर्ब्स हैं, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। शैल हैव बीन फॉर आई एंड वी एंड विल हैव बीन फॉर यू, ही, शी, दे, इट एंड नाउन। ओके। और इसके बाद में आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, ये हमने बेसिक समझ लिया टेंस को पहचानने के लिए कि हम कैसे टेंस को पहचानेंगे। अब जरा देखते हैं इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरा देखिए, हमने एक ये नोट दिया हुआ है, दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस आर टू such tenses which do not bear any helping verb in some of their sentences. In affirmative sentences and negative sentences with no and never, they do not bear any helping verb at all. In these sentences, in these sentence structures, you know, in these sentence structures, simple present tense bears first form of the verb or s form of the verb, means first form of the verb plus s or es, and simple past tense bears second form of the verb. Okay, so ये बात मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं, जिसको मैंने नोट में भी अभी यहाँ दे दिया। अब देखिए मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए हैं वो टू टाइप्स के हैं। एक तो ऐसे हैं जिनको आप बड़े इजीली, जिनका टेंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हमने एक लिस्ट दी है करीब 25 to 30 सेंटेंसेस जिसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एडवांस वे में हम कैसे टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे देखिए यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एस फॉर्म आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बड़ा इजी है हमारे लिए। फिर देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया प्ले, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर देखिए नोबडी टेक्स केयर ऑफ हिम, ये नो वाला नेगेटिव है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, एस फॉर्म आया है, और एस फॉर्म केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर देखिए अब हेल्पिंग वर्ब आई, डज नॉट, डज आई, फर्स्ट फॉर्म आया, तो हमने हेल्पिंग वर्ब से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऊपर के ये 3 सेंटेंसेस में मैंने वर्ब के फॉर्म को देख करके आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सा टेंस। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हैं we do not cheat others। ओके, सो डू हेल्पिंग वर्ब है, इसको देख करके, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने इसको देख करके आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये देखिए नेवर वाला सेंटेंस है, नेवर वाले सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, तो फिर हम वर्ब के फॉर्म को देख करके टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। सेट्स, एस फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके। फिर देखिए दे फॉट अगेंस्ट द एनिमी वेरी ब्रेवली, अब देखो इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फॉट आया। अब देखिए फाइट के फॉर्म होते हैं फाइट, फॉट, फॉट, तो हम ये भी नहीं समझ पाते कभी कभी ये फॉट थर्ड फॉर्म है या सेकंड है, तो हमेशा आपको ये याद रखना है, यू मस्ट रिमेंबर दैट थर्ड फॉर्म नेवर कम्स विदाउट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बिना थर्ड फॉर्म आता ही नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो जिसे आप थर्ड समझ रहे हैं वो सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म आया, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस। फिर देखिए ही नेवर बिलीव्ड एनीबडी, नेवर वाला सेंटेंस है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, तो देखिए ये यूज नहीं हुआ, और जब डिड नहीं आई तो फिर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ, बिलीव्ड। अगर ये बिलीव्ड किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में होता तो इसे हम थर्ड फॉर्म कहते, इसे सेकंड नहीं कहते फिर, तो ये सिंपल पास्ट टेंस। नो वन डिस्टर्ब्ड हिम
इन हिज टास्क, सो डिस्टर्ब्ड फिर आपका सेकंड फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर ये सिंपल पास्ट टेंस आपका हो गया। फिर देखिए ही डिड नॉट स्कॉल्ड, अब डिड आया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई तो फर्स्ट फॉर्म आया, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को देख करके टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सिंपल पास्ट टेंस। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर टुडे, अब देखिए इज के साथ में आईएनजी फॉर्म, इज आर एम के साथ में आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म एंड फॉर्म को देख करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आर के साथ में देखिए आईएनजी आया, दे आर नॉट प्लेइंग द गेम प्रॉपरली, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देन देखिए am I disturbing you now, so am and ing form of the verb, so present continuous tense. Sorry. Was he shouting loudly, so was he shouting loudly, was and were when they are followed by ing form of the verb they make past continuous tense, so ये देखिए was के बाद में ing form आया तो ये past का continuous tense बना। शी वॉज रनिंग वेरी फास्ट, फिर देखिए was के साथ में ing फॉर्म है तो फिर पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। दे वर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर, फिर देखिए वर के साथ में फाइटिंग यानी ing फॉर्म, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अब फिर आइए हैज या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। सो देखिए फिनिश्ड, अब ये फिनिश्ड आपका सेकंड फॉर्म भी होता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ आया तो ये थर्ड है, अब ये थर्ड फॉर्म माना जाएगा इसको। So I have finished my task, present का perfect tense। जरा और देखिए she has not deceived me in business, so देखिए फिर has के साथ में थर्ड फॉर्म present perfect tense। have you committed a mistake, have you committed a mistake, so have के साथ में ये थर्ड फॉर्म, ये committed सेकंड भी होता है थर्ड भी होता है लेकिन have के साथ में है तो ये थर्ड कहेंगे इसको, तो ये आपका फिर आपका present का perfect tense है। द पुलिस हैड कंट्रोल्ड द मॉब, अब देखिए हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैड के साथ में ये थर्ड फॉर्म यानी पास्ट का परफेक्ट टेंस। फिर देखिए शी हैड नॉट फॉलन इन कैरेक्टर, फॉलन इज थर्ड फॉर्म, हैड हेल्पिंग वर्ब, पास्ट का परफेक्ट टेंस। हैड यू सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, सो हैड के साथ में सॉल्व्ड थर्ड फॉर्म यानी ये भी आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस है। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, अब देखिए हैज बीन या हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। दे हैव नॉट बीन, देखिए हैव बीन एंड आईएनजी फॉर्म, सो हैज बीन या हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। they have not been doing their duty sincerely, we had been playing since morning, so had been and ing form यानी past perfect continuous tense। he will help me simple future tense, okay, shall या will के साथ में first form यानी simple future tense। फिर देखिए और I shall be waiting for you, future continuous tense, okay। when will she have slept, देखिए will के साथ में have and third form, will have third form यानी future perfect tense। they will not have been doing, will have been and ing form, will have been and ing form future perfect continuous tense। अब देखिए ये तो इस तरीके से तो आइडेंटिफाई करना लगभग लोगों के लिए इजी होता है, लोग इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन अब आगे की बात देखिए कि हम कैसे समझेंगे कि ये कौन सा टेंस है। नोट में देखिए नाउ वी शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ सम अदर सेंटेंसेस विद डिफिकल्ट टेंस स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ कंफ्यूजन की हमें जो है थोड़ी गुंजाइश होती है, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे देखिए इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म है तो फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं आया तो जब भी कंटिन्यूअस टेंस का फेलियर होता है यानी कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म नहीं हो पाया तो वो सिंपल टेंस बन जाता है। परफेक्ट टेंस का फेलियर अगर है, परफेक्ट टेंस फॉर्म नहीं हो पाया यानी वो सिंपल टेंस बन गया, ओके। तो जिसको आप प्रेजेंट परफेक्ट समझ रहे हैं वो सिंपल प्रेजेंट हो गया, जिसको आप पास्ट परफेक्ट समझ रहे हैं वो सिंपल पास्ट हो गया, जिसको आप पास्ट कंटिन्यूअस समझ रहे हैं वो पास्ट का सिंपल पास्ट हो गया। तो देखिए
ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही इज माई क्लोज फ्रेंड, यहाँ आईएनजी फॉर्म नहीं है। जब तक इस आर या एम के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा तब तक प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म नहीं होगा। अब देखिए यहाँ इसके साथ में थर्ड फॉर्म है तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव फॉर्म है, एक्टिव नहीं है, लेकिन है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई एम टू गो, देखिए यहाँ एम के साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं आया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ये भी कंटिन्यूअस टेंस को फॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। दे आर बीइंग पनिश्ड, अब देखिए आर के साथ आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, ये मिल गया हमको, ये मिल गया बीइंग, यानी ये है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे और क्या है। शी हैज लॉस्ट हरसेल्फ इन हर वर्क, सो अपने वर्क में उसने अपने आप को लॉस्ट कर दिया। हैज के साथ में या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म है, यानी परफेक्ट टेंस बन रहा है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। अब नीचे देखिए वी हैव अ कार, अब हैव के साथ में कोई वर्ब नहीं है तो यहाँ परफेक्ट टेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, यानी ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर देखिए दे हैव टू रिसीव, अब हैव के साथ में थर्ड फॉर्म नहीं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए आई हैव बीन टू मुंबई, अब देखिए जो आपका हैज बीन या हैव बीन होता है उसके साथ में आईएनजी फॉर्म आए तो फिर प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, और जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फेलियर होगा यानी वो फॉर्म नहीं हो पाएगा तो क्या बनता है, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का फेलियर तो सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस का फेलियर तो सिंपल टेंस, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर फॉर्म नहीं हो पा रहा है, उसका फेलियर है, तो बनेगा परफेक्ट टेंस। जरा देखिए ये क्या है, आई हैव बीन टू मुंबई, अब हैव बीन के साथ में कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है, यानी ये यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का जो है वो फॉर्म नहीं हो पाया, इसलिए ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शी हैज बीन मार्क्ड, देखिए हैज बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म आता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म हो जाता, लेकिन थर्ड फॉर्म आया तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। माई फ्रेंड हैड सम सीरियस प्रॉब्लम, अब देखिए हैड के साथ कोई फॉर्म ही नहीं है, वर्ब ही नहीं है, यानी ये जब कोई वर्ब नहीं होगी तो ये क्या है, ये परफेक्ट टेंस का फेलियर है, क्योंकि यहाँ परफेक्ट टेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन परफेक्ट टेंस फॉर्म नहीं हुआ, यानी ये सिंपल पास्ट हो गया। हैड के साथ में फिर थर्ड फॉर्म नहीं है तो परफेक्ट टेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, यानी सिंपल टेंस ही फॉर्म होगा, तो ये सिंपल पास्ट है। ही हैड टू कंडक्ट द सर्जरी ऑफ माई कंपनी, जॉन हैड बीन एन एथिस्ट, तो देखिए हैड बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म आता है तो फिर पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म हो जाता है, लेकिन पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फेलियर है, इसलिए इसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ही हैड बीन डिसीव्ड एट द क्रूशियल टाइम, अब हैड बीन के साथ में फिर देखिए आईएनजी फॉर्म आता तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म हो जाता है, लेकिन थर्ड आया तो फिर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां देखिए टोनी हैड बीन लिविंग, अब आया देखिए हैड बीन के साथ में अब आईएनजी फॉर्म आ गया तो ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म हो गया। तो ये देखिए टोनी हैड बीन लिविंग इन दिस लेन फॉर लास्ट 10 years। फिर देखिए शी विल बी एब्सेंट, अब देखिए शैल बी या विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म होगा, लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा तो कंटिन्यूअस टेंस का फेलियर है ना, और कंटिन्यूअस टेंस का फेलियर बनाता है सिंपल टेंस, यानी ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये कोई फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है, सिंपल फ्यूचर टेंस। फिर देखिए रोहित विल बी गिवन अ प्राइज, विल बी के साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं आया, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म नहीं हो पाया, तो क्या है ये, सिंपल फ्यूचर टेंस। ही विल हैव सम रेस्ट नाउ, अब विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म होता है, लेकिन यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये क्या हो गया, परफेक्ट टेंस का फेलियर यानी सिंपल टेंस, तो ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल हैव टू डू माई ड्यूटी, फिर देखिए विल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म नहीं आया, फिर परफेक्ट टेंस नहीं बन पाया, फिर फेलियर है इसका, तो फिर आप क्योंकि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो ये फिर आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। शी विल हैव बीन अवे
अवे फ्रॉम हियर फॉर अ फ्यू डेज। तो देखिए यहाँ पर विल हैव बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म आता तो फिर ये बन जाता फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब भी फेलियर होता है तो परफेक्ट टेंस बनता है। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, द लेसन विल हैव बीन टॉट बाय द टीचर। देखिए विल हैव बीन के साथ में फिर आईएनजी फॉर्म नहीं आया, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म नहीं हो पाया, तो फिर ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। Thank you friends, thank you viewers for watching the video. If you have liked this video, please push the like icon and subscribe my channel. Thank you very much.